Good morning, students. So today we are going to discuss about anatomy of mouth and teeth, and we will take two video lectures to compile or complete this topic. And in this video lecture or part one of anatomy of mouth and teeth, we are going to discuss very briefly about the oral cavity, the vestibule, lips, cheeks, gums, and teeth. And along with the teeth, we will also discuss very briefly about the structure and function of different types of teeth. So let's start with it. So what is an oral cavity? Oral cavity, if you want to define, then you have to write that oral cavity is the initial part or the first part of the gastrointestinal tract where the process of mastication or chewing of the food occurs, and the initiation of digestion starts with the help of mixing of the food or food few bolus with the saliva. तो ओरल कैविटी में ही च्यूइंग हो रहा है, ओरल कैविटी में ही यहाँ जीआई ट्रैक्ट जो है ओरल कैविटी से माउथ से स्टार्ट हो रहा है, और ये इसीलिए पहला पार्ट हो गया जीआई ट्रैक्ट का। और साथ ही साथ जो च्यूइंग ऑफ फूड है और मैस्टिकेशन का प्रोसेस है वो इसी ओरल कैविटी में होगा, और यहाँ पे जो बोलस है, जो फूड है, वो जब सलाइवा से मिक्सअप होता है तो यहीं से विद इन द माउथ ही डाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिजियोलॉजी में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नाउ ओरल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। एनाटॉमिकली ओरल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर और नैरोअर part that is called as vestibule, and the deeper part or the larger part that is called as oral cavity proper. Now, what is vestibule? Vestibule is nothing but a narrow space in between the gums and the teeth and lips and cheeks. That is, if you want to define or you have to write what is a vestibule, then you have to write vestibule is a narrow space which is bounded anteriorly by the lips and the cheeks and posteriorly by the gums and the teeth. एंड कम्युनिकेशन का बात करें, सो थ्रू द ओरल कैविटी, थ्रू द ओरल फिशर, थ्रू द ओरल फिशर इट कम्युनिकेट्स एक्सटर्नली, वेयर एज थ्रू आप बियॉन्ड द टीथ इट कम्युनिकेट्स टू द ओरल कैविटी प्रॉपर, इट फ्रीली कम्युनिकेट्स टू द ओरल कैविटी प्रॉपर। एंड जब हमने ग्लैंड्स पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड्स, तो हमने पढ़ा था पैरेटेड डक्ट के बारे में। सो पैरेटेड डक्ट वी ऑलरेडी नो दैट इट ओपन्स at the opposite side of the crown of upper second molar, and apart from this parotid duct there are certain labial ducts and buccal glands, labial glands and buccal glands. There are certain molar glands, 4 to 5 molar glands, which are present or situated within the mucosa of this vestibule, and they also opens within this vestibule. So आपने ये जो भी मतलब हमने जो बात की ये वेस्टिब्यूल में ग्लैंड्स के ओपनिंग का, पैरेटेड डक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखें। उसके अलावा कुछ मोलर ग्लैंड्स और लेबियल एंड बकल ग्लैंड्स की ओपनिंग्स भी वेस्टिब्यूल में ही ओपन होते हैं। एंड this fold of mucous membrane which is marked as maxillary labial frenum, it is also called as the frenula of the lip, and it is the median fold of the mucous membrane which basically attaches the upper lip to the gums and lower lip to the gums. So lips को attachment देने के लिए the lip is bounded or is attached to the gingiva or the gums with the help of this fold of mucous membrane called as frenulum. Okay, now what are lips? So lips are basically वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू अदर। फेस पे जब देखोगे तो एज कम्पेयर टू द स्किन ऑफ द फेस, लिप्स का जो टेक्सचर है स्किन का, दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट एंड कंटेन्स ट्यूबरकल्स। ओके, सो लिप्स जो हैं वो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं विच इज़ कवर्ड एक्सटर्नली बाय द स्किन and internally by the mucous membrane, and the junction, the mucocutaneous junction, mucocutaneous means mucous membrane और skin के बीच का जो junction है, both the mucocutaneous junction of both the lips will joins
at the oral fissure. This is the oral fissure. Okay, so or this oral fissure, at this oral fissure, the mucocutaneous junction of both the upper lip and the lower lip will joins, and both these lips will join each other at the lateral angles of the mouth, or called as oral commissure. The upper border, this is the one, this the border of upper outer border basically of the both the lower lip and the upper lip is called as vermilion border. And the this vermilion border of the upper lip has a bow like course, and is called as cupid's bow. ओके, दिख रहा है यहाँ पे देखो, ट्रेस के अलग से एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, तो दिस इज क्यूपिड्स बो. And there is a depression or hollow depression just above this cupid's bow called as philtrum, which extends till the aperture of the nose, till the midpoint, till the midpoint where the joining of the elan is, till the apex of the nose. Now cheeks, so talking about cheeks or buccal, so cheeks are the this is the basically the buccal vestibule, and this is the cheek. So cheeks are the fleshy flaps which forms basically the larger part of the face. दोनों तरफ अगर cheeks का बात करें तो सबसे larger part of the face जो है वो cheeks यानी गाल से ही बनता है, आपके बक्के से ही यानी बक्कल से ही बनता है. And they are basically continuous in front with the lips, सामने लिप्स के साथ कंटिन्यूस है इन फ्रंट. एंड एट द जंक्शन इट इंडिकेट्स बाय द नेजियोलेबियल सल्कस, द नेजोलेबियल सल्कस और फरो, यहाँ पे लेबल्ड नहीं है. सो नेजियोलेबियल सल्कस जो है या फरो विच एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द नोज टू द एंगल ऑफ द माउथ, वहाँ तक चीक्स जगह एक्सटेंशन रहता है. एंड अगर लेयर्स का बात करें, सो आउटवर्ड्स फ्रॉम आउटवर्ड्स विद इन अगर चलते हैं तो चीक्स में लेयर्स का बात करें, चीक्स बेसिकली कंपोज्ड ऑफ द आउटवर्ड स्किन. देन वी हैव द सुपरफिशियल फेशिया, यहाँ पे लेबल्ड नहीं है. आफ्टर स्किन वी हैव द सुपरफिशियल फेशिया. देन superficial fascia will contain some facial muscles and the parotid duct, the mucous molar glands and along with their ducts. तो ये सारा जो है superficial fascia में रहेगा. And then we have the buccinator muscle. Yes, this one, the dark green one. This is the buccinator muscle. Okay, buccinator muscle, which is basically covered by the buccopharyngeal fascia. This buccinator muscle is covered by the buccopharyngeal fascia. Then we have the buccal glands. Yes, we have the some mucosa of having the buccal glands. This is the submucosal layer having the buccal glands. Okay, and then we have the buccal mucosa. Okay, so the buccal mucosa and this buccal mucosa will have the buccal glands, and this is the buccal vestibule. Okay, so this is the buccal vestibule. तो ये जो है लेयर्स की अगर बात करें चीक्स के, तो लेयर्स विल बी फॉर्म बाय द स्किन. सुपरफिशियल फेशिया will contain or cover some facial muscles as well as parotid duct. Then we have the buccinator muscle. Then we have the buccal glands within the buccal mucosa. Okay, and lastly we have the vestibule, that is the buccal vestibule. The buccal, अच्छा एक चीज़ देखो आप यहाँ पे कि there is a pad of fat known as buccal fat, और this buccal pad of fat is best develops in infant. इसीलिए बच्चों के गाल जो हैं वो आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो थिक होते हैं, कि वहाँ फैट बकल फैट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट. सो ये यहाँ पे ये बकल फैट्स हैं, और ये बकल फैट जो है वो अडल्ट जैसे से चाइल्ड जो है वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, वैसे वैसे बकल फैट जो है वो फैट का कम होता चला जाता है. एंड बेसिकली ये जो बकल फैट है ये कहाँ लाई करेगा, तो ये बक्सिनेटर मसल से डीपली, और मैसेटर मसल जो है यहाँ पे मैसेटर मसल हमने फेस में डिस्कस किया था, तो इन बिटवीन द बक्सिनेटर एंड द मैसेटर मसल बेसिकली ये जो मसल बकल फैट है ये रिसाइड करता है.
now talking about oral cavity proper. So oral cavity proper is basically bounded anteriorly by the teeth and the gums, और यू कैन से एंटेरोलेटरली, मतलब आगे से लेके देखो पीछे तक लेटरल तक जा रहा है ना ये पूरा जो, तो बाउंड्री का अगर बात करें ओरल कैविटी प्रॉपर के, सो एंटेरोलेटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द टीथ एंड द गम्स. ओके, and along with this we have the alveolar arches of the jaw. Okay, the alveolar arches of the jaw. So alveolar arches of the jaw, the teeth and the gum will form the anterolateral boundary of the oral cavity proper, and the roof is formed. अच्छा, posterior मैंने बात इसलिए नहीं किया, बेसिकली ये जान के रखो posterior जो है वो कहाँ तक ओरल कैविटी प्रॉपर कहलाएगा, दैट विल बी अप टिल द फॉसेस. ओके, द फॉसेस. सो ये देखो ये जो दो एरो से लेबल्ड है, दीज आर द फॉसेस, जहाँ से वो फैरिंग्स में जो है कंटिन्यू हो जा रहा है ओरल कैविटी. सो जहाँ एट द जंक्शन ऑफ द ओरोफैरिंग्स टिल देयर ओरल कैविटी प्रॉपर का एक्सटेंशन रहता है. ओके, सो पोस्टीरियर बाउंड्री में फॉसेस लिख सकते हैं. द रूफ इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द हार्ड एंड द सॉफ्ट पैलेट. ठीक है, पीछे हमने जब इनिशियल स्लाइड में देखा था, सो रूफ ऑफ द ओरल कैविटी प्रॉपर इज फॉर्म्ड बाय द हार्ड एंड द सॉफ्ट पैलेट, एंड द फ्लोर इज बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय द टंग. ओके, द फ्लोर इज बेसिकली ऑक्यूपाइड बाय द टंग पोस्टीरियरली. और ये जो है ये टंग के साथ साथ सबलिंगुअल रीजन जो है एंटीरियरली, थोड़ा सा जहाँ सबलिंगुअल ग्लैंड हमने पढ़े थे, सबलिंगुअल रीजन एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली टंग जो है वो फ्लोर बनाते हैं ओरल कैविटी प्रॉपर का. नाउ अगर पोस्टीरियरली बात करें, बताया मैंने कि द कैविटी इट कम्युनिकेट्स विद द isthmus ऑफ द फॉसेस. देखो यहाँ पे ये फॉसेस लेबल्ड है, तो दीज आर द, यहाँ पे isthmus ऑफ द फॉसेस. और ये isthmus ऑफ द फॉसेस जो है यहाँ जो मतलब ये isthmus पे ही सुपीरियरली सॉफ्ट पैलेट बाउंड हो रहे हैं. यहाँ पे सुपीरियरली तो सॉफ्ट पैलेट है ऊपर की तरफ, और आगे इंफीरियरली बात करें तो टंग है, और दोनों साइड में वी हैव द पैलेटाइन टॉन्सिल्स. यस, तो बाउंड्रीज का अगर बात करें फॉसेस के, तो पोस्टीरियर बाउंड्री जो है ये फॉसेस तक एक्सटेंड कर रहा है, एंड अबव दीज फॉसेस वी हैव द सॉफ्ट पैलेट, below we have the tongue, and on both lateral sides we have the palatine tonsils. Okay, and these palatine tonsils जो है वो कहाँ पे है, palatoglossal arches. ये जो tonsils हैं यहाँ पे these arches are called as palatoglossal arch. Getting it? So ये palatoglossal arches जो हैं उस पे ही palatine tonsils हैं, वहाँ पे वो literally extend करेंगे ये fosses में. Okay, so now ये तो बात हुआ ओरल कैविटी के बाउंड्रीज़ का. नाउ अगर हम बात करें सबलिंगुअल रीजन की, यहाँ पे देखो ये टंग जो है वो पीछे की तरफ लिफ्टेड अप करके दिखा रखा है, तो बेस ऑफ द टंग यहाँ पे देखो. अगर हम बात करें बेसिकली सबलिंगुअल रीजन का, सो इट हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द मीडियन प्लेन देयर इज़ अ फोल्ड. Yes, in the median plane there is a fold of mucosa, and which passes from the inferior aspect of the tongue, to the floor of the mouth. देखो नीचे ऊपर से टंग के inferior aspect से floor of the mouth extend करता है, and this fold of mucosa is the frenulum of the tongue. Okay, so this is the lingual frenulum or the lingual frenum or frenulum or the frenulum of the tongue. And on each side of this frenulum, as you can see in this figure, on each side of this frenulum there is a sublingual papillae or the duct of the यहाँ पे तो ये पैपिला है, ये डक्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड तो एकदम यहीं पे ओपन हो रहा है ईच साइड ऑफ द फ्रेनुलम में. उसके अलावा ये जो ये फोल्ड है इसकी बात मैं कर रहा हूँ, दीज आर द सबलिंगुअल पैपिला. ओके, दीज आर द sublingual papilla. On each side there are sublingual papilla and as well as the sublingual fold. So these are the sublingual papilla and the sublingual fold जो जिसके नीचे where below which sublingual gland जो है वो reside करता है. So above the sublingual gland there is sublingual papilla or sublingual fold. और अगर lingual frenulum की बात करें तो just below, just where the lingual frenulum joins or attaches to the oral cavity proper or the floor of the mouth, we have the opening of the ducts of
submandibular gland. Okay. Now, what are gums? Talking about gums, so gums are also called as gingiva. Okay, and gingiva or gums are the soft tissues which basically envelops the alveolar process, which basically envelops the alveolar process of द अपर एंड लोअर जॉज. तो जो ये एल्वियोलर प्रोसेसेस हैं, अपर जॉ लोअर जॉ दोनों की बात कर रहे हैं, उनको जो एनक्लोज या एनवेलप करके रखता है सॉफ्ट टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज जिंजिवा और गम. एंड ये जो भी सराउंड, अगर ये बात करें कि कहाँ तक एक्सटेंड करता है, सो इट विल सराउंड्स द नेक ऑफ ऑल द टीथ्स. देखो, तो जब हम टीथ में भी स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे तो आप नेक पढ़ोगे, सो टिल नेक ऑफ द टीथ ये गम्स जो है वो एक्सटेंड करते हैं. सो दीज गम्स आर सॉफ्ट टिश्यूज विच बेसिकली एनवेलप्स द एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ एंड इट एक्सटेंड्स टिल और सराउंड्स द नेक ऑफ द टीथ. अच्छा, कैसा कॉम्पोजिशन है? सो इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यूज एंड इज कवर्ड बाय द स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. सो डेंस अगर इनर कंपोजिशन का बात करें तो ये डेंस फाइब्रस टिश्यूज है. ये देखो येलो कलर्स में, तो दीज आर द फाइब्रस टिश्यूज एंड ये आउटर वन द पिंक वन इज शोइंग द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. अच्छा, हर गम्स का अगर गम की बात करें, सो ईच गम हैव two parts, the free part or the free gingiva. Yes, this is the free part or the free gingiva, and the attached gingiva, the attached part. Okay, so the free part basically which is surrounding the neck of the teeth is called the free gingiva or the free gums, and the attached part basically you can see in this figure is firmly attached to the alveolar processes of the jaws. So the attached part is firmly fixed to the alveolar arch of the jaw. एंड ये जो अगर फाइब्रस पार्ट की बात करें, देखो ये जो फाइब्रस पार्ट है, दिस फाइब्रस पार्ट बेसिकली कंटिन्यूज विद द पेरियोस्टल लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलाई और जो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है जॉ का, वहाँ पे से फर्मली अटैच्ड होता है दिस द फाइब्रस लेयर ऑफ दिस जिंजिवा और द गम्स. Now talking about teeth, so teeth basically forms the first part or the main part of the masticatory apparatus. Mastication, muscles of mastication में पढ़ा था, तो mastications के लिए जितनी important muscles हैं उतने ही important teeths हैं. And teeth basically form the important part of masticatory apparatus and are fixed to the jaws. upper jaw और lower jaw में देखो fixed है basically. Yes, and इन मैन, अगर हम इंसानों की बात करें अभी ह्यूमंस का, सो इन ह्यूमंस द टीथ आर ओनली रिप्लेस्ड वंस इन अ लाइफ टाइम. एक बार ही लाइफ में रिप्लेस होते हैं. एंड इसीलिए जो ह्यूमंस हैं उनको डाइफाइडोंट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि लाइफ में एक बार रिप्लेस होते हैं, पूरा सेट ऑफ टीथ रिप्लेस होता है और परमानेंट टीथ जो है वो आ जाता है. जो पहला द फर्स्ट प्राइमरी टीथ जिसे कहते हैं, जो बार बार सुना होगा, द टीथ ऑफ द फर्स्ट सेट और फर्स्ट डेंटिशन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी टीथ और द मिल्क टीथ और द डेसिडुअस टीथ. और आफ्टर द फॉलिंग ऑफ दीज प्राइमरी टीथ और द मिल्क टीथ द परमानेंट सेट ऑफ टीथ इरप्ट्स. अब ये जो डेसिडुअस टीथ का अगर बात करें, अच्छा पहले तो टीथ में कितने टाइप्स के जो टीथ हैं वो बात कर लेते हैं. देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ in our mouth: the incisors, the canine, the premolars and the molars. एक adult में, we are talking these sets into adults की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे incisors, canine, premolars and molars. In case of primary set of teeth, we don't have premolars there, we have incisors, canine and molars. Okay, and the deciduous set of teeth, total number of teeth कितने हैं एक जॉ की अगर बात करें, so each jaw will contain 16 teeth. 16, so total 32 teeth or 16 set of teeth were there in an adult. और अगर प्राइमरी टीथ का बात करें डेसिडुअस टीथ का, तो दे आर 20 in numbers, 10 on each jaw. So 10 sets of deciduous teeth will be there which will fall off at a certain age, and after that the man will have the permanent set of teeth which will be 16 sets और 32 in numbers. ओके, अच्छा 32 जो नंबर्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, 16 का काउंटिंग कर लेते हैं. तो वी हैव द, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, वी हैव 2 incisors. ओके, देन वी हैव 1 canine. ओके, देन वी हैव 2
premolars and we have 3 molars. Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 on each lateral side. एक जॉ में एक लेटरल साइड पे 8 हैं, सो 8 and 8 16 on the upper jaw. That means अगर टोटल काउंटिंग करोगे तो we have 4 incisors, 2 canines, 4 premolars and 6 molars on each jaw. Total counting 16 on each jaw, and total number of teeth, permanent teeth, will be 32. ओके, अब अगर पार्ट्स का बात करें, पार्ट्स ऑफ अ टूथ, सो बेसिकली ईच टूथ हैज़ 3 डिफरेंट पार्ट्स. द क्राउन, द अपर मोस्ट, द अपर वन, द क्राउन विच बेसिकली प्रोजेक्ट्स द अबव और बिलो द गम. जो गम के ऊपर आपको दिखता है, जो विजिबल टीथ पार्ट है, दैट इज़ द क्राउन. देन वी हैव द नेक. ओके, सो नेक is basically between the lower part, the root and the crown, and neck is covered by the gums. Okay, so gums से देखो neck covered है, so this is the neck part which is basically covered by the gums. And below these, below this, the second part, the neck one, we have the root. The greatest part is the root which basically embedded within the jaw, beneath the gums. तो gums के नीचे जो embedded part है teeth का within the jaw, that is called as root. So each part, each tooth has 3 parts: the erupted part or the crown, the part, middle part which is covered by the gums, called as neck, and the part below the gums which is embedded within the jaw is called as root. Now talking about structure of each tooth. So each tooth structurally is composed of basically the pulp. ओके, ये पल्प कैविटी का बात करें, ये पल्प विद, अगर सेंटर से चलते हैं पेरिफेरी की तरफ, सो फ्रॉम द सेंटर ईच टूथ हैज़ अ पल्प इन द सेंटर. देन सराउंडिंग द पल्प वी हैव द डेंटाइन. yes, we have the dentine, or this is the dentine or dentin, and surrounding the dentin is the outer covering, that is called as enamel. Okay, yes, this outer tough tissue is called as enamel, which basically covers the projecting part of the dentine. And then we have एनामल को ही क्राउन कहा है. जो क्राउन की बात कर रहे हैं, जो क्राउन जो है वो डेंटाइन कवर्ड बाय एनामल इज द क्राउन. ओके, देन वी हैव द सीमेंटम. ओके, व्हाट इज सीमेंटम? सीमेंटम इज नथिंग बट द पार्ट, द कवरिंग विच सराउंड्स द एम्बेडेड पार्ट ऑफ द टूथ. देखो ये जो है ज्योमेट्री इसका, दिस इज द सीमेंटम. सो दिस इज द फोर्थ structure, that is the cementum, which you have to remember. And last but not the least, you have to remember the periodontal membrane. Okay, so these are the periodontal membrane, और ये जो ligament labeled है यहाँ पे periodontal ligament. So ये 5 structurally अगर बात करें, each tooth has these 5 structures. The pulp cavity within the center, which contains basically the blood vessels and the nerve endings. And then we have the dentine. This dentine covers the pulp cavity, and outwards we have the enamel which covers the dentine. And basically this enamel will covers the dentine at the part, at the level of crown. मतलब जो crown है, जितना part crown कहलाता है teeth का, उतना ही part enamel cover कर रहा है dentine को. Then the rest of the dentine will be covered by the cementum, that is the embedded part of the tooth. And then the dentine of the embedded part of the tooth will be enveloped by the cementum, and outwards through the cementum we have the periodontal ligament or the periodontal membrane. अच्छा, पल्प का अगर बात करें, सो पल्प मैंने बताया जैसा कि पल्प इज़ नथिंग बट अ वेरी सॉफ्ट टिश्यू विच बेसिकली कंटेन्स द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स. और ये जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, ये पल्प के थ्रू, कैविटी के थ्रू एंटर कैसे हो रहे हैं? थ्रू दिस एपाइकल फोरामेन. देयर इज़ अ फोरामेन. अच्छा, डिपेंड करता है, ये जो है अभी आप देख रहे हो, सो बेसिकली दिस इज़ अ कनाइन टूथ, एंड कनाइन में यहाँ पे देखो एक अपाइकल फोरामेन है. एंड इन केस ऑफ मोलर्स वी हैव 2 to 3 अपाइकल फोरामेन. जितना कि उनका सीमेंट, मतलब जितने सारे रूट्स होंगे, जितना रूट्स होगा उतने ही अपाइकल फोरामेन्स हो सकते हैं. सो थ्रू दिस अपाइकल फोरामेन द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व एंडिंग्स विल एंटर द पल्प कैविटी ऑफ द ईच टूथ. ओके, एंड ये डेंटाइन का अगर बात करें, सो बेसिकली डेंटाइन इज
द कैल्सिफाइड मटेरियल। ओके, सो ये स्पाइरल टिब्यूल्स हैं, देखो ये डेंटाइनल टिब्यूल्स है, स्पाइरल टिब्यूल्स हैं, और दिस इज द कैल्सिफाइड पार्ट ऑफ द टीथ। ओके, तो कैल्सिफाइड मटेरियल having tubules is the dentine, and then the enamel is the basically the hardest substance in the body। enamel जो है वो सबसे hardest substance है बॉडी में पूरे, ऐसा मतलब बोन्स का जो है उसमें आउटर कवरिंग पेरियोस्टियम होता है। बोन्स का भी अगर बात करें तो उन बोन्स से भी मतलब उसके अगर आप स्ट्रेंथ का बात करें तो इनामल कैन बी कंसिडर्ड एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, एंड इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रिज्म मतलब प्रिज्म जैसा फिजियोलॉजी में सॉरी फिजिक्स में पढ़ा है प्रिज्म कैसा होता है। सो क्रिस्टलाइन प्रिज्म बहुत सारे क्लोजली बाउंडेड हैं और वो एनामल को फॉर्म करते हैं, और ये जितने भी प्रिज्म हैं ये लगभग 90 डिग्री एंगल पे टूथ के, ये जितने भी ये डेंटाइन के सरफेस पे 90 डिग्री एंगल्स पे आके ये एनामल जो है वो एम्बेडेड होता है। तो बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस, बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है, टिश्यू है। और वो क्यों है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि एडेप्टिविटी है नेचर का। अगर ये इतना हार्ड नहीं होगा सो द फंक्शंस ऑफ द टूथ विल नॉट बी टुक अप। सो ये फंक्शंस जो हैं वो हो सकें प्रॉपरली, दैट इज़ वाई देर इज़ अ नीड ऑफ दिस हार्डेस्ट सब्सटेंस और दिस हार्डेस्ट मटेरियल in the body, that is the enamel. Now cementum is the structure which basically resembles kind of bone, मतलब एक हड्डी की तरह, बोन की तरह जो है स्ट्रक्चर है cementum का, and cementum basically resembles a bone, and this cementum resembles a bone, but like enamel and dentine की बात अगर करें, खास बात अभी देखो कि डेंटाइन में भी आप देख रहे हो कि कोई ब्लड सप्लाई नहीं दिख रहा, कोई नर्व सप्लाई नहीं दिख रहा। वैसे ही एनामल में देखो देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई, देयर इज़ नो नर्व सप्लाई, एंड सिमिलरली सीमेंटम ऑल्सो हैज़ नो ब्लड सप्लाई एंड नो नर्व सप्लाई। सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स एनामल, डेंटाइन एंड सीमेंटम हैज़ नो ब्लड सप्लाई एंड नो नर्व सप्लाई, ओनली द पल्प हैज़ द ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई। ओके, एंड अगर बात करें पेरिडोंटल मेम्ब्रेन का, सो पेरिडोंटल मेम्ब्रेन और लिगामेंट दिस बेसिकली होल्ड्स द रूट। ये इसका यूज़ क्या है, लिगामेंट, अच्छा लिगामेंट क्यों बोल रहे हैं, देखो हमने पढ़ा है लिगामेंट्स के बारे में, लिगामेंट्स जॉइंट्स अ बोन टू द बोन। तो वो मतलब जॉइंट्स में सपोर्ट के लिए एक बोन को या दो आर्टिकुलर सरफेसेस को दो डिफरेंट बोन के, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का जो काम करते हैं वो लिगामेंट्स करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ जो एल्वियोलर सॉकेट हैं जॉज में, सो ये यहाँ पे इन बेसिकली एल्वियोलाइज में रूट ऑफ द टीथ को होल्ड अप करके रखना। रूट जो है उसमें सीमेंटम अभी हमने पढ़ा, तो सीमेंटम इज जस्ट लाइक अ बोन, सो अटैचिंग दिस सीमेंटम और होल्डिंग दिस सीमेंटम फर्मली टू दीज एल्वियोलाइज इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दीज पेरिडोंटल लिगामेंट्स। और ये जो हैं ये लिगामेंट्स और मेम्ब्रेन ये बेसिकली पेरियोस्टियम की तरह ही एक्ट करते हैं। ओके, ये पेरियोस्टियम की तरह ही एक्ट करते हैं सीमेंटम के लिए और एज वेल एज बोनी सॉकेट के लिए भी। तो मतलब इधर बोनी सॉकेट के लिए भी पेरियोस्टियम का काम कर रहे हैं और सीमेंटम के लिए भी ये सिमिलर पेरियोस्टियम का ही फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ टीथ, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट चार तरह के टीथ्स हैं बॉडी में, अपने पास ह्यूमन बॉडी में। वी हैव इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सो पोजीशन का अगर बात करें, सो फ्रंट अगर सामने की बात करें माउथ में, वी स्टार्ट विद द फ्रंट, वी हैव द इंसाइजर्स इन फ्रंट विच इज़ बेसिकली चिजल शेप्ड और शार्प एजेस होते हैं जिनके, कटिंग, इसीलिए बाइटिंग ऑफ द पीसेस ऑफ फूड और कटिंग का काम जो है वो इंसाइजर्स का रहता है फंक्शन। नाउ देन मूविंग ऑन टू द कैनाइन, सो फॉलोड बाय द इंसाइजर्स, लेटरली मूव करते ही कनाइन, वी हैव कनाइन दोनों साइड में, आइदर साइड्स में इंसाइजर्स के वी हैव द कनाइंस, and each canine basically they are slightly more pointed than the incisor। incisors तो pointed हैं, sharp हैं, but chisel shaped हैं, ये pointed हैं, ये sharp हैं। canines जैसा कि आपने देखा कार्निवोरस एनिमल्स में कैनाइंस कितने शार्प होते हैं, तो ह्यूमंस में इतना नहीं है, बट येस दे आर मोर स्लाइटली पॉइंटेड दैन द इंसाइजर, एंड दे हैव द सिमिलर फंक्शन ऑफ द इंसाइजर, एंड अलॉन्ग विद दीज इट ऑल्सो हेल्प्स इन टीयरिंग ऑफ, ठीक है।
तो कैनाइन जो है वो थोड़ा सा टीयरिंग में भी हेल्प करता है और सिमिलर फंक्शंस कट ऑफ करने में, किसी भी फूड पीस को बाइट करने में, कट करने में रोल प्ले करता है. Then we have the premolars. Premolars are just behind the canines or lateral to the canines, and premolars have 2 points और cusp. देखो एक इधर एक इधर. Yes, premolars have 2 points और 1 or 2 रूट्स. रूट्स का अगर बात करें तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है प्रीमोलर्स में, डिपेंड्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग रहता है. एंड दीज देयर आर 2 cusps here, and basic function of premolar is tearing and grinding of the food. And last but not the least are the molars, which basically are the most lateral one in the jaw, or the at the back we have the molars. Molars basically have 3 to 5 cusps and 2 to 3 roots. Okay, 2 रूट भी हो सकते हैं, 3 रूट भी हो सकते हैं, और 4 से 5 कस्प रहते हैं. एंड चूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ द फूड का जो फंक्शन है, दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मोलर टीथ्स. Okay, so that is all for today. We will continue with the second part of the mouth and teeth, and in which we are going to discuss about the eruptions of teeth, कि primary teeth या milk teeth और deciduous teeth कब erupt होते हैं, कब shed होते हैं. And then we will discuss about eruptions of permanent teeth. We will be go in detail of the nerve supply of the teeth, and then we have the some clinical conditions related to the oral cavity and teeth. So till then, stay home, stay healthy, take care. Thank you so much.